प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात कर रहे हैं फार्मर्स के इश्यूज़ के हवाले से कि किस तरह से किसान जो धरती पर सब कुछ उगाता है और उसके बाद उसका कोई भी पुरसाने हाल नहीं होता। अभी भी मार्केट में चले जाएं, मंडी में चले जाएं, आलू को, सब्ज़ी को कोई पूछ नहीं रहा और ये कहा जाता है कि किसान माफिया सब कुछ खा गया। जब गंदम आती है मार्केट में उसके बाद कोई भी गंदम ख़रीदता नहीं है, 2000 रुपये मन ख़रीदी जाती है और जब गंदम किसान के हाथ से निकल के आड़ती के हाथ में आ जाती है तो फिर 5000 रुपये मन तक चली जाती है। इसी तरह से गन्ने की बात कर लें तो गन्ना जो है वो ये लकड़ी जिसको हम बालन कहते हैं उससे भी सस्ता बिकता है, लेकिन जब चीनी की फार्म में सामने आती है तो ये चीनी ही 200 रुपये 250 रुपये किलो बिक जाती है। तो 2 किलो चीनी से ही जो है वो गन्ना एक मन निकल आता है। इसी तरह से दीगर फसलों का, दीगर अजनास का, दीगर फलों का हाल है कि आड़ती उसमें से पैसे कमा जाता है, मिडल मैन पैसे कमा जाता है, लेकिन जो फार्मर है वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर होता है। तो अभी ताज़ा तरीन फार्मर्स को किन किन इश्यूज़ का सामना है, किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी मुझे बताइएगा, यहाँ पर बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, किसानों को शुगर मिल्स की जानिब से अदायगियाँ नहीं हो पा रही, अभी जो है वो आड़ती उनके गंदम के पैसे नहीं दे रहे। तो मौजूदा सूरत हाल में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं किसान के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करांगा सिटी 41 और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का, क्योंकि उन्होंने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਤੋੜਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 45 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ 50 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗਾ ਖਰਚੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਗਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਸਲਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਜ਼ਾਤ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਜੇ 50 ਆਪਣਾ ਲੱਖ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਉਹ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 100 ਤੇ 1 ਅਰਬ ਤੇ 17 ਕਰੋੜ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂਦਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਹੈ, ਚਨਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਆ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾਉਂਦੀ? ਕੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਮੈਂ WhatsApp ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਰਬ 17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ, ਅਜੇ ਚਨਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਜਵਾਣੀ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੀਨੀ ਵੀ ਚੁਕਵਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਆਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਸਤੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੰਦਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਸੀ ਉਦੋਂ 2000 ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਨੇ ਕਮਾਇਆ? ਜਿਹਨੇ 2000 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ 5000 ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਵਾਈ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਉਹਨੇ 3000 ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2000 ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿਸਾਨ ਕਪਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਪਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਕਪਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਯੂਵ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਂ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ 34-35 ਮਣ ਤੇ ਗਈ ਆ, ਉਹ 85 ਮਣ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦਵਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਰਨ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਦੇਣ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਵਿਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 18 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਵਲ, ਗੰਦਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ। चलो शुक्रिया, दोबारा आने थोड़े हल। नाज़रीन, ये किसान तपे हुए हैं, उनके रहनुमा भी तपे हुए हैं। मज़ीद राना साहब, ये चीज़ें बहुत दुखी करने वाली हैं कि किसानों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम CD41 के शुक्रगुजार हैं और अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब के शुक्रगुजार हैं जो किसान की तकलीफ़, किसान का दुख, किसान की परेशानी को लेकर बाला कमांडर तक पहुँचाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। हर इंसान को इस चीज़ का पता होता है कि कहाँ ये नुकसान हो रहा है, कहाँ को कमी हो रही, कहाँ पेशी हो रही है। इसलिए अभी बाहर एक किसान है जिसकी इज़्ज़त नहीं है। अभी हर इंसान जो है वो किसान ही पैदा करता है, किसान ही लगाता है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है, तो हर इंसान इस्तेमाल करता है। जैसे गंदम है, चीनी है, कपास है, कपास से कपड़ा बनता है, हर इंसान कपड़ा पहना, लेकिन किसान की फिर भी इज़्ज़त नहीं है। क्यों नहीं इज़्ज़त? किसान का भी एक मर्तबा होना चाहिए, किसान का एक म्यार होना चाहिए, किसान की भी इज़्ज़त होनी चाहिए। वो कहीं जाए जाके अपनी पहचान कराए कि ऑफिस में जाए तो हर बंदा उसकी इज़्ज़त करे। तो वाकई हमारा जो हमारा मुहब्बे वतन है, जो हमारी खेती करता है, जो हमारी ज़मीन से अनाज की ऊपर उगाने की कोशिश करता है, उसकी इज़्ज़त की जाए। इस तरह इसका भी स्टेज होना चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए। जैसे कभी कोक की फैक्ट्री है, वो फ़रूक साहब हैं, फ़रूक खान साहब हैं, अभी उनको चेयरमैन लगा दिया, फेस्को का चेयरमैन लगा दिया। अभी उसकी इज़्ज़त क्या है? उसका क्या है? कोक है, कोक तैयार हो रही है। कोक क्या है? कोई फ़ायदेमंद नहीं चीज़ है ना। चलिए वो हम इस पर बाद में बात करते हैं। पहले मुझे ये बताइएगा कि अभी यहाँ पर किसानों को इस मौका पर किन इश्यूज़ का सामना है? पहली बात है कि जो कमाद है, कमाद के पिछले साल के लोगों के CPR पड़े हुए हैं, काफ़ी मिलों के बकाया बकाया हैं, जो कमिश्नर ने कुछ भी नहीं किया। मुँह से बातें करते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन अन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता। इसलिए जो पैसे हैं बर वक्त तमाम किसान को मिलने चाहिए। किसान का वही सिस्टम होता है, उसके साथ किसान ने शादी करनी या कोई प्रोग्राम बनाना है, मकान बनाना है या कुछ भी करना है, उसने उन पैसों के साथ करना है। अब किसान को पैसे बहुत मुश्किल है इस हालात में। अभी एक और बम गिरा दिया है। माह रमज़ान में जंगें बदर हुई थी, माह रमज़ान में अक्सर जंगें ज़्यादातर माह रमज़ान में हुई हैं और माह रमज़ान में कुरान मजीद पाक का नज़ूल भी हुआ है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु पर। इसलिए इन्होंने इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम पर 55 रुपये का बम गिरा दिया है। अभी जो गंदम है, अच्छा, डीजल महंगा होने से किसानों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? पहली बात है कि जब नहरें बंद रही है, पहले एक माह बंद रहती थी, जब गंदम की बिजाई होती है उसके बाद नहर बंद हो जाती है। वो के महीने में जब बंद रही है, जब 2 माह बंद रही है, अभी उसमें भी पानी की कमी रही है। नहरी पानी की और बात है, ट्यूबवेल के पानी की और बात है। नहरी पानी जो है बहुत जरखेज है, इसलिए गंदम में काफ़ी कमी भी आनी है पानी की वजह से। अच्छा, दूसरी बात है, अभी जो लोगों ने ट्यूबवेल चलाने हैं, ट्रैक्टर चलाने हैं, बाद में गंदम काटनी है, गंदम को मतलब निकालना है, तो तेल तो खर्च होना है। जब तेल खर्च होगा तो उस वक्त अखराजात बढ़ेंगे। इसलिए चाहिए कि किसान को रिलीफ दी जाए, हर इंसान को जीने का मौका दिया जाए। अभी दुनिया में कहीं भी तेल की बढ़ोतरी नहीं हुई,
अगर हुई है तो रुपया 1.5 रुपया 50 पैसे 10 पैसे हुई है। वाहद एक पाकिस्तान है कि जिसने 55 रुपये का बम गिरा दिया। चलिए, थैंक यू। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अभी मज़ीद भी इसी हवाले से बात करते हैं, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद फार्मर्स हमारे साथ मौजूद है, किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, ज़फ़र अली गोरसी साहब। गोरसी साहब, क्या कहेंगे किसानों को इन दिनों में किन इशूज़ का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो भाई इन दिनों में उम्रे पे रहा हूँ, अभी पहुँचा हूँ एयरपोर्ट से। आपका फ़ोन आया रात को, जब मैं आ रहा था तो मैं सीधा इधर आ गया हूँ। गाँव में बात होती रही है मेरी माशाल्लाह, तो मदीने से भी लोग परेशान हो गए हैं, काफ़ी पैसे पहले ही पिसे हुए हैं, किसान बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है, बड़े इशूज़ हैं। और ऊपर से ये जंग की वजह से महंगाई, ठीक है ना, आई है नहीं, पहले ही आ गई है। लोगों को तुम पता है कि इधर माफिया बहुत ज़्यादा है, पहले आ गई है। पेट्रोल महंगा हुआ है तो रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं इधर। तो अभी रेट का उन्होंने बोला है हुकूमत ने, तो गाड़ियों वालों ने सब ने रेट किराए बढ़ाने शुरू कर दिए। इसलिए महंगाई है, ये जो इशूज़ बने हैं ना जंग के जी, और जो मुल्क में बने हैं, ये किसान के लिए बहुत नुकसान दिया। वो जरा पहले पिसा हुआ है और पिस जाए। खादों के हवाले से इन दिनों में जब गंदम को ज़रूरत है तो खादों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो वो यही माफिया ही करता है ना भाई यार, माफिया करता है। माफिया जो है वो बैठा है, ठीक है ना। आप देखें कि रमज़ान से पहले आप सब्जियों के फ्रूट के रेट चेक कर लें। जैसे ही रमज़ान चढ़ा है, रात को सुबह को रेट डबल नहीं ट्रबल था, ठीक है ना। 200 रुपये वाली चीज़ 600 रुपये में थी, ठीक है ना। और यही मामला है कि ये इन लोगों को पता है कि कब रेट कैसे बढ़ाना है। अब खाद के लिए ज़रूरत है पानी की, इन्होंने कह देना शार्ट है जी, पीछे आ नहीं रही जी, मिल नहीं रही। वो जो छोटा तबका है ना, खासकर मैं तो हर जगह ही जाता हूँ, तार साहब के साथ जाता रहता हूँ। गाँव में जो जाते हैं, तो हमारे गाँव में तो बहुत 2-2, 4-4, 5-5 किले के ज़्यादा ज़मींदार नहीं है। बड़े से बड़ा ज़मींदार जो वो 20-22 एकड़ का है, और वो सब परेशान है, रो रहे हैं। जब किसान गंदम बेचता है तो 2000 रुपये में बिकती है, बाद में 5000 रुपये मन हो जाती है। यार ऐसे ही है ना, ये सारा अब्दुर्रहमान असल में माफिया को, ये वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को माफिया को हाथ डालना चाहिए। ये इतने काम किए हैं हमने, ये काम किया, कार्ड पे काम किया, और काम भी अच्छे डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, लेकिन किसान के लिए भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जो कर्जे कुर्जे देते हैं किसानों को, ये भी मिलते हैं या ये भी बस कागजों में है? ये नहीं, अभी देखो जी, वो कोई ट्रैक्टर स्कीम वगैरह है, वो तो सुना है कि हो रही है, लेकिन अभी मेरे गांव में तो किसी किसान ने कर्जा नहीं लिया। ये बातें ही हैं बस। नहीं, मुझे इसका पता नहीं, इस पर मैं कोई वर्किंग नहीं की। और कमाद के हवाले से कुछ कहेंगे? कमाद के हवाले से यही है, मैं बताया कि पैसे नहीं टाइम पे मिलते लोगों। टाइम पे पैसे हर चीज़ के, एक खाद टाइम पे मिलनी चाहिए। खाद माफिया को कंट्रोल कर लें, किसान का भी कुछ देने से बेहतर है ये चीज़ें कंट्रोल कर लें। खाद माफिया और कमाद माफिया, गन्ना लेना है बाद में पैसे लेने हैं, जलील होना है, या चीनी ले लें, पेमेंट टाइम पे नहीं मिलनी, तो ये इशू है सारे। चलें, शुक्रिया जो साहब। अभी यहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसल ताहिर ज़ा गुज्जर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ताहिर साहब, बड़े मसले बने हुए हैं किसानों के इन दिनों में। जी, ये कि एक तो अल्लाह ताला की तरफ से और हुकूमत की जो हमारी पॉलिसी है उसकी वजह से मेरा काश्तकार इंतहाई मुआशी लिहाज से परेशान है। ये समझ लें कि ईरान और अमेरिका की जंग है और काश्तकार की मुआशी जंग शुरू हो चुकी है। जो हुकूमत की पॉलिसी है, जो पॉलिसी है उसके समरात मेरे काश्तकार को नहीं पहुँच रहे। ट्रैक्टर हो गया, किसान कार्ड हो गया, ये अच्छी पॉलिसी है, लेकिन मसला है कि मेरे काश्तकार की जो फसल की कीमत है वो उसको प्रॉपर नहीं मिल रही। अब देखें, डीज़ल की कीमतें महंगी हो गई हैं, तो जो बंदा भी डीज़ल के बलबूते पे चल रहा है, ट्रांसपोर्टर है या कोई फैक्ट्री ओनर, उन्होंने अपने रेट उसी वक्त बढ़ा दिए। लेकिन मेरे काश्तकार का अलमिया ये है कि वो अपना रेट उसी वक्त बढ़ा नहीं सकता। उसकी जो ज़रिए जनास है उसकी कीमतें कुछ मार्केट ने मुकर्रर करनी है, कुछ डिमांड और सप्लाई ने मुकर्रर करनी है, कुछ हुकूमत की पॉलिसी ने मुकर्रर करनी है। जो नुकसान हो रहा है ना, वो मेरे काश्तकार को उसकी जो जिनस है उसकी अच्छी कीमत उसको बर वक्त नहीं मिल रही। ये सबसे बड़ा है। पॉलिसियाँ जितनी मर्जी अच्छी आ जाएँ, जब तक हमें अच्छी कीमत नहीं मिलेगी तो हमारा रोज़गार अच्छा नहीं हो सकेगा। दूसरी बात है, जो मौसमी असरात है, क्लाइमेट चेंज है, उसका भी सबसे ज़्यादा खमियाजा मेरा काश्तकार भुगत रहा है। अब देखें, पिछले चंद माह से बारिश का कतरा नहीं आया, उसकी वजह से हमें पानी जो है वो डीज़ल पे और बिजली पे इस्तेमाल करके फसलों को देना पड़ रहा है। वो डीज़ल महंगा हो गया, ऊपर से डीज़ल महंगा, ऊपर से कटाई सर पे आ गई। अब जो बारिशें कम हुई हैं उसका फसल की पैदावार पे भी मनफी असरात पड़े हैं। तो जो मनफी असरात है उसका भी जो बर्दाश्त करना वो मेरे काश्तकार ने करना, हुकूमत ने नहीं करना।
अब देखें जो पिछले साल गंदम के साथ हुकूमत की पॉलिसी या हुकूमत को जिस बंदे ने या जिस मार्केट के बंदे ने या कोई किसी कंपनी ने दिया या किसी एनजीओ ने उनको मशवरा दिया कि 2000 रेट नहीं, अब जो 4500 और 5000 के दरमियान रेट है तो वो हमें छापे मारे ना, खाद माफिया पे मारे, उनके छापे मारे कि क्यों ये 5000 वाली गंदम आप बेच रहे हैं, या वो बेनिफिट हमें काश्तकारों को हमें पहुँचाया जाए। अच्छा, वैसे अभी तो कहा जा रहा है कि गंदम 3500 रुपये मन खरीदी जाएगी। देखिए पिछली दफ़ा भी बहुत सारे दावे किए गए थे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। काश्तकार का तो नुकसान हो गया तो उसका खमियाजा काश्तकार ही भुगत रहा है, काश्तकार के बच्चे भुगत रहे हैं, ना कि कोई और हुकूमती अहदेदार या सरकारी नुमाइंदा या हमारे जो सियासी नुमाइंदे वो तो नहीं भुगत रहे, वो मेरा काश्तकार ही भुगत रहा है। तो अब होना ये चाहिए कि जिस तरह रिलीफ दिया जा रहा है बाकी सेक्टर को, यानी एक्सपोर्ट जो कपड़े की है या टेक्सटाइल की है या जो हमारी जो इंडस्ट्री उसको जो सपोर्ट पैकेज दिया जाता है, वो मेरे काश्तकार को भी सपोर्ट पैकेज दिया जाए ताकि उसकी माशी हालत बेहतर हो सके और दिलजमी से वो अपनी काश्तकारी को कर सके। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी सामने आई है कि 2-2, 3-3 सालों से शुगर मिल्स की जानब पैसे फंसे हुए हैं किसानों के। इस हवाले से फार्मर्स के एंड पे क्या कोई मूवमेंट चल रही है, क्या तरीकाकार अपनाया जा रहा है कि उनकी पेमेंट्स क्लियर हो जाएं? देखें जी, जो शुगर मिल मालिकान हैं वो सारे बैठे हैं किसी न किसी हुकूमत के ऐवानों में, वो ताकतवर लोग हैं, वो बयानबाजी और हुकूमत की नोटिफिकेशनें, हमने ये सर्कल जारी कर दिया, डीसी साहब आपको पेमेंट लेके देंगे, वो जूं का तूं ही चल रहा है। किसी मिल ने दे दिए पैसे, किसी ने बकाया रख लिए, कभी मिल बंद कर दी, ट्रालियों की लाइनें लग गई, ये चूली दामन का साथ चलता रहा है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि हमें जो प्रॉपर हमारी कीमत है ज़रिए जनास की, हमारी उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है उसको मद्देनज़र रख के काश्तकार को हमने 5% नफ़ा देना है, 10% देना, वो डिसाइड कर दे। ये ना हो कि काश्तकार मारे मारे फिरे। आप देखें ना, टमाटर की कीमत देखें मार्केट में ना होने के बराबर है। आलू हमारा जो है अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो हमें कोल्ड स्टोरेज में रखने की इजाज़त दी जाए, वहाँ पे हमें कोई बेनिफिट सब्सिडी दी जाए ताकि वो आलू हमें रख सकें। अब प्याज देख लें, आलू देख लें, कोई ऐसी सब्ज़ी भी देख लें, गंदम के अलावा भी तमाम चीज़ों पर काश्तकार का नुकसान हो रहा है और किसी सेक्टर का इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा। काश्तकार ने पानी भी दिया, काश्तकार ने दिन रात अपनी खेती बाड़ी भी की है, खादें भी डाली हैं, चाहे वो महंगी डाली हैं, ब्लैक में डाली हैं या उनकी क्वालिटी बेहतर नहीं थी, उसके बावजूद कीमतें नहीं मिल रही हमें। आ जाएं, बताइएगा क्या जो खादें हैं वो ऐन वक्त पे महंगी हो जाती है, ऐन वक्त पे हुकूमत है वो ख़रीदारी से इनकार कर देती है, लेकिन जब वही चीज़ें शार्ट होती हैं तो फिर महंगी हो जाती हैं। सबसे पहली बात ये है कि किसान जो है वो ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। किसान ने वही चीज़ फ़रोख्त करनी है, पूरा साल वही खरीद कर इस्तेमाल करनी है। अगर किसान खुद उसको ज़ख़ीरा कर सके, उसको संभाल सके तो किसान भी खुशहाल है। इसलिए जो मिडल मैन है, जो खरीदते हैं आगे चीज़ को स्टॉक करते हैं, वो आगे फ़ायदा ले जाते हैं। अभी देखें इस तरह आलू का है सिस्टम है, इस तरह मतलब ना वो प्याज का है, टमाटर है। अभी जो चीज़ें आ रही हैं डायरेक्ट किसान से आ रही हैं वो सस्ती हैं, और जो चीनी है वो उसी रेट पर है। फ्रूट है जो उन्होंने रखा हुआ है कोल्ड स्टोरों में, वो अभी रमज़ान है, रमज़ान से पहले एक अमरूद ही वो 100 रुपये था, जब रमज़ान शुरू हुआ 300 रुपये हो गया। सेब, केला सब कुछ महंगा है। इसी तरह केला जो 100 रुपये था वो 300 रुपये दर्जन हो गया, जो अच्छा केला था। अभी की जो 11 महीने वो भी इस तरह इस्तेमाल करें। तकवा यही है, एक आदमी मतलब नहाता है, अंदर पानी नहीं जाने देता एक कतरा भी, इस तरह वजू करता है एक कतरा अंदर नहीं जाने देता। ये तकवा है कि कहीं मेरे अंदर पानी चल जाए, अल्लाह ताला देख रहा जा वो देख रहा है। इस तरह इंसान को चाहिए कि हम मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं और उम्मती हैं उस नबी के जो रहमतुल्लिल आलमीन बन के रहे। अगर हम इस हिसाब से सोचें, जो मिडल मैन है जो चीज़ खरीदते हैं वो इस महीने में नफ़ा ना लें, वो गरीब आवाम को रिलीफ दें। उस तरह किसान को भी चाहिए कि वो भी अपना जो सिस्टम है, अपनी जो खेती बाड़ी है उसको उस हिसाब से इस्तेमाल करे, अपने उस साल का स्टॉक रखे, वो इस तरीके से इस्तेमाल करे। अब ये किसान खुद इस तरह का काम करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इज़्ज़त भी होगी, उसको खुशहाली भी मिलेगी। शुक्रिया जी। इसी हवाले से बात करें, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की है, तो मुझे ये भी इसमें बताइएगा कि फार्मर्स के हवाले से किसान खुद को शऊर नहीं देता कि ये चीज़ें अगर वो काश्त करे प्रॉफिट होगा, बेड़ चाल का शिकार हो जाता है कि पिछले साल ये चीज़ महंगी हुई थी तो वो आलू ही लगा लिए और आलू जो है वो रुल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਆ
ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਸ਼ੌਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਫਸਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਆ ਬੀਜ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਅਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਰੋ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਆਟਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਅੱਛਾ, ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ को ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਜੀ ਆਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸਾਇਲ ਪੁੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਿਸ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਦ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਆ, ਬੀਜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਗਾ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਰਿਲੀਫ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ 20 ਏਕੜਾਂ ਜਾਂ 25 ਏਕੜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਖਲੋਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। शुक्रिया ताहिर साहब, एंड पे मैनू ये दसो कि किसान खुद से कोई चीज़ें, मतलब पहले हम देखते थे कि रवायती तौर पर खादें या उनकी जगह रूढ़ी या दीगर चीज़ें इस्तेमाल होती थी। अब फार्मर भी थोड़ा आराम पसंद हो गया कि वो खाद ही इस्तेमाल करता जाता है, DAP दूसरी चीज़ें, और वो काफ़ी उसकी लागत बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। अभी भी जिन लोगों ने आलू की काश्त में कम खाद या कम स्प्रे लगाई है, उनकी पैदावारी लागत कम हुई है और उनका ख़र्चा पूरा हो गया। जिन्होंने ज़्यादा खाद स्प्रे यूज़ की है, उनकी जो पैदावारी लागत थी वो भी 2-2.5 लाख एकड़ तक चली गई और वो ज़्यादा नुकसान में गए हैं। लेकिन जी ज़िम्मेदार की ये मजबूरी है कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ले फ़ी एकड़, तो प्रोडक्शन फ़ी एकड़ ज़्यादा से लेने के लिए जो हमारी जो केमिकल की खादें हैं, कीमियाई खादें जिसको हम कहते हैं, यूरिया हो गया, DAP, उसके ऊपर वो इन्हिसार ज़्यादा करना शुरू कर दिया ज़िम्मेदार ने। आसानी भी है। अब जो रूढ़ी वाली है या जो हमारी देसी खादें हैं, उसके लिए ना ज़िम्मेदार के पास इतने ज़्यादा जानवर है, ना उसके लिए कोई मशीनरी ऐसी कि वो खाद जल्दी तैयार हो जाए। वो तो साल में एक दफ़ा तैयार होती है, तो ये हमें चाहिए 6 माह बाद, 3 माह बाद खादें, तो इस तरह उनकी दस्तयाबी भी कम है। और ज़िम्मेदार की जो इसको कह लें, सुस्ती भी कह लें, काली भी कह लें, ज़िम्मेदार भी अब शॉर्टकट के ऊपर चला गया है कि मैं जाऊँ मार्केट से, चाहे महंगी चीज़ लूँ, मैं जाके फौरी लेके उसको इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरियात पूरी कर। बीज वो बड़ा इस्तेमाल किया जाता है गंदम में, चावल में, मकई में, दीगर फसलों में। जो हाइब्रिड बीज है, अच्छे सीड कंपनी है, उनके बीज कम इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़िम्मेदार की सख्त नहीं है, वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं बीज, लेकिन हमें चाहिए कि हर ज़िम्मेदार को अपने जो बीज हैं उनको प्रॉपर तरीके से स्टोर करे, उनको मेडिसिन लगाए, दवाइयाँ लगाए, ताकि उनमें कीड़ा और फंगस ना आए और वो ही दोबारा रिपीट कर ले। और दूसरा है कि जब आपने नया बीज लगाना है तो वो लाइनें हमें मिलती हैं, जो हमें नई वैरायटी आती है साल 2 साल बाद, 3 साल के बाद हमें नई वैरायटियाँ भी लगानी चाहिए। इसमें 2 राय नहीं होनी चाहिए। नई वैरायटी लगाएंगे, उनके कुफ्ते बर्दाश्त ज़्यादा होती है, कुफ्ते मदाफ़त होती है, ताकि हमारी प्रोडक्शन फ़ी एकड़ बढ़ सके। देखिए जी, सबसे ज़्यादा जो असल इशू है वो हमारा है कि हमें हमारी ज़रिए जिनास की कीमत जो है वो मुनासिब मिलनी चाहिए। वो नहीं क्या सुजेस्ट करेंगे कि किन किन चीज़ों की जो बड़ी फसलें हैं, जैसे गन्ना है, जैसे गंदम है, जैसे चावल है या मकई है या तिल है या इवन जो सरसों वगैरह है, इनमें क्या एक सुजेशन देंगे कि इस रेट पे होनी चाहिए? एक तो हमारा जो है ना, जो कास्ट का प्रोडक्शन का एरिया ज़रूरत के मुताबिक उसकी कैलकुलेशन दुरुस्त होनी चाहिए कि हमें कितने लाख एकड़ पे गंदम की ज़रूरत है लगाने की, और हमें प्रोडक्शन कितनी आएगी और हमारी मुल्क की ज़रूरियत किस तरह पूरी होंगी। डिमांड और सप्लाई को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो हमें कीमतों मार्केट में अच्छी मिलने की तवक्को हो सकती है। जो भेड़ चाल है कि एक बंदे को आलू को में पैसे बचे हैं तो दूसरे बंदे ने कापी करनी, दूसरे ने आलू अनदेखा लगाना शुरू कर दिया। किसी को चावल में पैसे बचे हैं, चावल लगाने, किसी को काटन में बचे हैं। देखिए, हम लोग करते हैं कापी पेस्ट एक दूसरे को देख के
असल होना ये चाहिए कि हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बंदे हैं, जो हमारे वहाँ पे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, या क्रॉप रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, उसको इंतहाई ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए गांव के लेवल पे, ताकि लोगों को कहेंगे जी आपने हर गांव ने 10 एकड़ टमाटर लगाना है, 10 एकड़ सब्ज़ मिर्च लगानी है, 10 एकड़ आपने ये अपना सरसों लगानी है। इससे अगर ज़्यादा लगाएंगे तो गवर्नमेंट आपको कीमत नहीं दे सकेगी। तो इस किस्म की जो पॉलिसी होगी उसमें लंबड़दार साहब को भी, जो गांव का हमारा बेसिक इकाई है, उसको भी एक्टिव करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिल बैठ के होनी चाहिए। ये ड्राइंग रूम की सियासत और ड्राइंग रूम की जो पॉलिसी हैं वो नहीं चलनी। ये हमारी पॉलिसियाँ जो दही इलाके में बैठ के चलनी चाहिए। ये जो पीछे से ट्रैक्टर आ रहा है, ज़रूरी मशीनरी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को हम रद्द नहीं कर सकते, उसकी ज़रूरत अपनी जगह। लेकिन सारी चीज़ें होने के बावजूद जब मुझे कीमत नहीं मिलेगी तो मुझे वो ट्रैक्टर का या किसान कार्ड का क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें वैसे किसान कार्ड का या मशीनरी का कोई फ़ायदा हो भी रहा है? चंद एक लोगों को हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास जो ट्रैक्टर है ना, वो ट्रैक्टर साल में 1 मुरब्बे वाला या 2 मुरब्बे वाला साल में 11 माह खड़ा रहता है, 1 माह चलता है बजाई और कटाई के वक्त। तो उसके लिए ट्रैक्टर के लिए जो छोटा ज़मींदार है वो तो अफोर्डेबल नहीं है, 6-7 एकड़ 10 एकड़, वो उसके ऊपर अगर मुझे ट्रैक्टर चलाना नहीं आता तो मैं ड्राइवर की पे कैसे दूंगा, तनख्वाह कैसे दूंगा। अच्छा, एंड पे मैं ये बस सवाल रखूँगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ ये एग्रीकल्चर मुल्क है, इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें जैसे ऑयल सीड है या बनस्पति घी, सारा पाम ऑयल वो बाहर से मंगवाते हैं, बाज़-औक़ात गंदम भी, चावल भी, बाज़-औक़ात कई चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, चीनी भी बाहर से मंगवानी पड़ती है, लेकिन कहने को ज़राई मुल्क। देखें जी, यही तो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। हमें क्रॉप जोनिंग के ऊपर आना चाहिए कि हमें जो कनोले वाला एरिया वहाँ पे कनोला हो, जो काटन एरिया वहाँ पे काटन हो। इससे हमारी जो पैदावार भी अच्छी हो सकती है और मौसमी असरात से भी बचा जा सकता है। जी, यही सवाल आपकी जानिब भी है कि यहाँ पर ये बड़ा मसला नहीं है कि हमारे लिए ये बायसे शर्म है कि एग्रीकल्चर मुल्क होते भी बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਗਾਉਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮਤਲਬ ਦੇਵੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮਤਲਬ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫਸਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜੂਬ ਰਿਸਰਚ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪਾਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ 6 ਏਕੜ 7 ਏਕੜ 8 ਏਕੜ ਕਪਾਹ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਪਾਹ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੂਬ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ तमाम हुकूमत चाहिए कि जूब रिसर्च पूरा अध्ययन पूरा चेक एंड बैलेंस होवे और माना बैठे ने। शुक्रिया राना साहब, थैंक यू। नाज़रीन, सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्रॉप जोनिंग का तसव्वुर नहीं है, हमारे यहाँ किसान को नवाजने का तसव्वुर नहीं है। इसकी बजाय बड़े लोगों को नवाज दिया जाता, लेकिन जो ही फार्मर की बारी आ जाती है कोई भी हिम्मत नहीं करता, कोई भी फार्मर पर तवज्जो नहीं देता और इसी वजह से फार्मर बदहाल है। आज के प्रोग्राम में किसान रहनुमाओं के जो इतराज़ात थे, किसानों के इतराज़ात थे, वो अब तक पहुँचाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।